आई फील वेरी बैड कि एक बच्चा मेंस की भी प्रिपरेशन करता है बट देन वो सीसैट की वजह से प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस इज प्लीज़ स्टार्ट ऑन टाइम कि पेपर मेरे हैंडआउट में से ही आएगा, पेपर और कहीं से नहीं आ सकता। दिस ईयर दे हैव कम्प्लीटली चेंज द इंग्लिश पेपर पैटर्न, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर हु वर नॉट फोकसिंग ऑन मैथमेटिक्स, सो उन स्टूडेंट्स को बहुत लॉस हुआ है। Hi, Manshi ma'am. Hi Ansh. Would you like to tell us about your UPSC journey as a CSAT teacher? Oh, of course. So, actually, I think a lot of us believe that once you become a teacher, your learning arc kind of diminishes. But in my journey, I have observed that, my learning arc actually started. And, because once you become a teacher, you encounter so many students, you see their experiences, and, you hear about their stories. And every student has a different, unique story. And they are going through different stuff, and you see कि हाँ वो लोग किस चीज़ से किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। सो आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स एंड नाउ दे आर लाइक माई सेकेंड फैमिली। सो माई जर्नी हैज़ बीन अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी। Okay, ma'am, in CSAT, which section do you find more scoring? Quant, reasoning, or comprehension? Okay, so actually, to be very honest, if you'll see every year, this was a myth, to be honest. Every year students used to think, acha, we'll do English only, English is scoring, maths is scoring. Some students think English is better, maths is better, or reasoning is better. But every year UPSC is now making one subject very unpredictable, and students have to rely on the other one. So I don't think कि कोई भी एक ऐसा subject है जो scoring है. Yes, maths में accuracy रहती है, but again English helps you to increase your number of attempts. So all three subjects are equally important, and they're equally important as per your score as well, and balance करके चलना चाहिए तीनों ही subjects को. Okay, ma'am. Is CSAT really fair for aspirants? Of course, CSAT is a very fair examination. If you'll see, सबसे पहले उसमें जो इंग्लिश आती है, it is nowhere near your vocabulary. and ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपकी vocab टेस्ट होती है, इंग्लिश में आपकी एज एन एस्पिरेंट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर ऑल्सो बिल्ट लाइक दिस कि व्हाट इज़ द डिसीजन यू वुड टेक. सो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको बहुत डिसीजन मेकिंग करनी होती है, एंड इन इंग्लिश दे डू नॉट टेस्ट योर वर्बल स्किल्स और एनीथिंग, दे टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स व्हेन दे से कि आपका critical message क्या है, what have you learned from the passage. So a lot of it is not proper English. ऐसा नहीं है, लैंग्वेज पे फोकस नहीं है, लर्निंग पे फोकस है. सिमिलरली फॉर मैथमेटिक्स एज वेल, हम लोग ने सारे स्टूडेंट्स ने 10th तक मैथ्स पढ़ी होती है, एंड इफ़ यूल सी द पेपर एज वेल तो उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. येस, इट इज़ ट्रू दैट मैथ्स का जो लिंक है वो बहुत बच्चों ने दे हैव स्टॉप्ड डूइंग मैथमेटिक्स फॉर लाइक पास्ट 6, 7, 8 years once they enter this UPSC वाला फील्ड. सो उन्होंने मैथ्स छोड़ा होता है बहुत से बच्चों ने, especially if they are from humanities background, and so there is a phobia surrounding it. But then still, if you look at the syllabus also, it is not unfair at all. Okay, ma'am. You talked about humanities just now. Yeah. I would like to ask you about engineers. Is CSAT helping them? At one point earlier, if you'll check out the question papers also, I used to feel that yes, because the paper जब पेपर के मार्क्स ऐड हो जाते हैं मैथ्स के, तो obviously a lot of engineers could clear the paper based on their maths and CSAT score only. First of all, it is an additional subject, तो उसके मार्क्स ऐड नहीं होते. So first criteria is this, जो कि ये एक unfair या bias remove कर देता है from the engineers point of view. Secondly, I think today at this point इंजीनियर्स को बेनिफिट करने से ज़्यादा हार्म हो रहा है, बिकॉज दे फील कि ना CSAT की मैथ्स है, हमने तो मैथ्स इतने सालों से पढ़ी हुई है, एंड दे आर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड दे डू नॉट रियलाइज़ कि इंजीनियरिंग की मैथ्स या 11th-12th की मैथ्स वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर CSAT की मैथमेटिक्स. सो हाँ, उनको ये है कि इफ़ यू आर अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि आपने मैथ्स पढ़ी है, ठीक है, आपको फोबिया नहीं है, तो आपका मेंटली इट बेनिफिट यू. बट अगेन इट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक फॉर अ कॉन फॉर देम, बिकॉज कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम तो इंजीनियर्स हैं, मैथ्स स्टूडेंट हैं, तो हमसे CSAT हो जाएगा, एंड अ लॉट ऑफ देम फेल इन द पेपर बिकॉज ऑफ दिस. Okay, ma'am.
One advice you would like to give to the beginners who fear CSAT? See, the most important advice is please start on time. A lot of students feel that they will start 2 to 3 months before the exam and फिर एग्ज़ाम में क्लियर भी हो जाएगा. सीसैट अब ऐसा पेपर नहीं रहा है जो आप एंड में स्टार्ट करो या सुपरफिशियल स्टडी करो एंड क्लियर कर लो. सीसैट रिक्वायर्स एफर्ट्स. स्पेशली अभी क्वेश्चन सिलेक्शन करना यूपीएससी ने बहुत टफ बना दिया है, बिकॉज यूपीएससी इज़ नाउ आस्किंग वेरी लेंदी क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन जीएस बट इफ़ यू विल सी सीसैट के क्वेश्चंस की भी लेंथ बहुत इंक्रीज कर दी है. पहले मैथ्स के क्वेश्चन वर वन लाइनर्स एंड नाउ दे ऑल हैव स्टेटमेंट्स. सो क्वेश्चन सिलेक्शन आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है. आप जितना टाइम स्पेंड करोगे मॉक्स देने में एंड ऑल ऑफ दैट, उतना ही आपको हेल्प होगा. सो येस, द मेजर एडवाइस वुड बी प्लीज़ स्टार्ट ऑन टाइम. प्लीज़ डू नॉट टेक सीसैट एज एक चलो ठीक है कर लेंगे, उसको लाइटली मत लो. Okay, ma'am, one more question. Are you more of a strict teacher or a chill mentor? You should, yeah, you all know the answer, and plus आपको बच्चों से पूछना चाहिए. So to be very honest, and I'll tell you, so many students even after the CSAT exam they'll be texting me with their mains problems also कि मैम टाइम टेबल नहीं बन रहा है. They also text me, मैम वेट गेन हो रहा है तो प्रॉब्लम है and all of that. So I don't think that I am a strict teacher. I think that they consider me more like a friend or friend only, जिसके साथ वो problems भी share कर लेते हैं. Okay, ma'am. One mathematical fact that you really admire. One mathematical, yes, actually there is, and I always quote this in the class as well. आप अगर 1 की power, if you take 365, it is 1 only. But if you take 1.01 की power 365, it becomes 37 point something. So इट एक्चुअली मीन्स कि अगर आप अपना एफर्ट 0.1 से भी इंक्रीज़ करते हो ना, तो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट पड़ता है. 1, अगर आप डेली 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हो या 1.01 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हो, आई एम सेइंग पावर 365 बिकॉज 365 डेज होते हैं. आप पूरा साल अगर डेली 0.1 भी एफर्ट अपना इंक्रीज़ करते हो ना, यू विल सी कि आपका एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलेगा. Okay, ma'am. Recently, we took students' feedback, and many said that Himanshu ma'am is the goat of CSAT. So, what's the reason behind this fan following? Goat of CSAT. To be very honest, I don't know about goat of CSAT or not. But यार मेरा ना एक वो मोटिव रहता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, इवन इफ मतलब कोई भी काम कर रहे हो आप, पहले तो उसमें अपना 100% दो. बिकॉज इवन इफ यू आर गिविंग 1% लेस, इट इज़ नॉट वर्थ इट. ठीक है. सो आई लव माई वर्क, तो आई ट्राई कि मैं विद एवरी स्टूडेंट मतलब आई नो कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो कितने मार्क्स ला रहा है. सो आई थिंक आई एम ऑलवेज ऑन देयर हेड कि तुमने पेपर क्यों नहीं दिया, तुमने ये क्यों नहीं किया एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक ना मोस्टली टीचर्स को ऐसा लगता है कि उनका काम क्लास में ख़त्म हो जाता है. आई बिलीव दैट उनका एक्चुअल काम क्लास के बाद स्टार्ट होता है. सो नॉट जस्ट फॉर द 2.5 hours of the class, you also have to interact with students after the class, and that is one of the things I think which helped me develop that relationship with the students, and so that's why maybe. Okay, ma'am. How should students approach CSAT? I think one problem students face in CSAT is resources. So what's the best CSAT source according to you? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, रिसोर्स की प्रॉब्लम ये है कि एक तो एवरी ईयर यूपीएससी हैज़ बीन चेंजिंग द पैटर्न. दिस ईयर ऑल्सो दे आर इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस इन verbal ability and all of that. So there's no single book that will help you. The only thing that will help you is your PYQs. If you check this year also, the question of decision making, जो बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत चेंज हो गए या इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो गया, अगर आपने 2014-15 का पेपर किया होता, उसमें भी सेम डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो द बेस्ट सोर्स इज़ PYQs. सेकेंडली, आप बिल्कुल अपना, सम स्टूडेंट्स ऑल्सो आस्क कि हम घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या नहीं. आप बिल्कुल कर सकते हो. इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर अ सोर्स, देर इज़ नो सिंगल बुक दैट विल हेल्प यू आउट. आप मार्केट में जाओ, पिक आउट 3-4 बुक्स एंड सी, क्योंकि हर बुक की लैंग्वेज भी अलग है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग है, फॉर्मेट अलग है. तो आप वो भी देखो कि आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है. बट फॉर मी, आई पर्सनली बिलीव PYQs आर द बेस्ट सोर्स. One common myth about CSAT in UPSC?
वन कॉमन मिथ इज़ दैट सीसैट एंड में करने पर क्लियर हो जाएगा. दिस ईयर ऑल्सो आई हैव बीन लिटरली रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स टू प्लीज़ टेक इट सीरियसली, बिकॉज आई फील वेरी बैड कि एक बच्चा मेंस की भी प्रिपरेशन करता है एंड टू बी ऑनेस्ट दे प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, बट देन वो सीसैट की वजह से प्रिलिम्स फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाते हैं. ऑल्सो सीसैट एक आपके बस एक क्वालिफाइंग पेपर है, स्टिल दे कांट क्लियर इट. दे थिंक कि अब हो जाएगा एंड में प्रिपेयर करके, बट सीसैट आज की डेट में इट इज़ अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स करने एंड पूरा टाइम चाहिए सीसैट के लिए भी. सो प्लीज़ उसको एंड में मत छोड़ो. इट इज़ अ मिथ कि सीसैट लास्ट के 2-3 मंथ्स में क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर. Okay, ma'am. A recent prelim CSAT paper has shocked many aspirants. According to you, what mindset or preparation myths failed badly? एवरी ईयर ना इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. यूपीएससी डज दिस कि जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पे रिलाई करके जाता है ना, दैट स्टूडेंट फेल्स इन द एग्ज़ाम, because 2023 में भी they made maths very difficult. Even students from IIT, I know they were not able to clear the exam 2023 का CSAT. This year they have completely changed the English paper pattern. So a lot of students were there who were not focusing on mathematics. They were thinking कि चलो English करेंगे paper clear हो जाएगा. So उन students को बहुत loss हुआ है. सो आई थिंक इस एग्ज़ाम में ना थोड़ा शॉक फैक्टर ज़्यादा था. स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इंग्लिश का इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाना, एंड दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक, जो मतलब शॉक फैक्टर जो स्टूडेंट्स को मिला 2026 में. सो अगेन आई विल से प्लीज़ गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द सेक्शंस. Okay, ma'am. Why should a student join Level Up IAS? First of all, because Level Up IAS is the best. And secondly, because personally all the teachers here don't believe that ये कोई business है या ये कोई market है जिसमें हमने एक student को commodity की तरह कोई भी treat नहीं करता है. All the students are like a family only of Level Up IAS. And for me for CSAT, I believe that there's a guarantee that I give in my very first class कि पेपर मेरे हैंड आउट में से ही आएगा, पेपर और कहीं से नहीं आ सकता. बिकॉज आई बिलीव कि आप बच्चों को क्लास में प्रिपेयर देम फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो. सो आप उनको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके भेजो, वो एग्ज़ाम में जैसे वो शॉक अब्जॉर्ब कर पाएँ. सो हमने इतना मैथ्स पढ़ाया था बच्चों को, इतने टेस्ट हुए थे, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, देन फुल लेंथ टेस्ट, एवरीथिंग वाज देयर. सो इवन इफ अ स्टूडेंट फेस्ड कि इंग्लिश में पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, दे नो कि अच्छा इंग्लिश में चेंज हुआ मीन्स मैथ्स वुड बी कंपैरेटिवली डूएबल. सो उन्होंने मैथ्स किया एंड उनका पेपर क्लियर हो गया. सो फॉर मी आई बिलीव दैट यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं. फॉर एवरी सिनेरियो वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स एंड वी गारंटी कि यहीं से जो आपको पढ़ाया गया वही आएगा. सो आई थिंक दैट्स व्हाई यू शुड जॉइन लेवल अप IAS. Okay, thank you, ma'am.